Namaskar, myself Professor Jaimala. Today in my lecture series on mechanics, I'll talk about calculus of variation. Later we will use this calculus of variation technique to solve the mechanical problems. So basically in this lecture, I'll talk about the concept of calculus of variation, or what is the condition to find the stationary value of a line integral. So, first of all, what is the major uh, problem of calculus of variation? The chief problem of calculus of variation is the chief problem or the aim of calculus of variation is to find a curve for which a line integral is stationary. This is the chief problem of calculus of variation. You see, in this statement, we are stating that we are to find a curve, and what should be the characteristic of that curve? That for that curve there will be some line integral which should be stationary. So there are two concepts in it: a curve and a stationary value, or the stationary characteristic of a line integral. I should not say the value, stationary characteristic. So first of all, we have to understand that uh, what is the condition for a function in ordinary calculus to become stationary. Uh, when we when we work in simple calculus or one dimensional calculus, then, or you can say the single variable function calculus, how we define the stationary point? Stationary point in single variable calculus what is the stationary point in a single variable calculus? It is a point, suppose you have a function fx, then stationary point is the point where derivative of fx is 0. Stationary point of fx is the point where f dash x is 0. Say at x is equal to x naught. Solving this equation, suppose you find x is equal to x naught, that simply means that this is the stationary point. What does it physically mean? You see at this diagram. In this diagram, suppose I am talking about this point where it is written maximum. At this point, neither your function is increasing, neither your function is rising, nor it is falling. So it is the point where the function is not increasing or decreasing. It is having a stationary nature, and therefore this point is called the stationary point. And you can see that at this point, what is the slope? F dash x. F dash x is parallel to x axis, so it is 0. So this is the way to find the stationary point, that we put first derivative of the function to be 0 and we get a point. This is called the stationary point. And what is the nature of the function at this point? This point or this point
where it is written the minimum is also the point where neither the function is falling nor it is rising. So at both the points, at this point, and similarly, you can see this is also the point like having the same characteristic. At this point also, at this point, your function is changing its nature. It was falling and then suddenly it starts increasing. So there will exist a point in between the two types of physical nature, rising and falling, which is this middle point, which is this point. So these 3 points, these 3 points, function is having 3 types of characteristics. At stationary point, the function may be either maximum, like at this point, function may be minimum, or like this point, and function may have, or it may have, point of inflection. This is a very known concept which is known to every student of mathematics, that what is the point of inflection. So we are not interested in the corner points. These are the corner points. Rather, we are interested in the nature of the function in between this, uh, in between the range of x. कॉर्नर पॉइंट्स पे नहीं लेंगे हम, उसके बीच के पॉइंट्स पर देखेंगे कि किस तरीके का नेचर है. So you are seeing that these are the local minimum and local maximum. Here the function is maximum, here the function is having the point of inflection, here the function is having again the minimum. So these are called the local maximum and local minimum. Now, how we represent this change in the function? Suppose we are considering any point. Suppose we are considering a point here. Here is a point, or you can say here is a point, here is a point. So consider a point x naught in the domain of x. Then what will be f x naught plus epsilon? That means what is the value of the function when your x naught is changed slightly. Epsilon is very, very small. We expand it by Taylor's theorem. Epsilon f dash of x naught plus epsilon square upon factorial 2 double dash of x naught, or you can write it as f of x naught plus epsilon f dash of x naught plus of order epsilon square. You will have the terms of the order epsilon square or greater than epsilon square. Now at stationary point, what is the nature of derivative of f? It is 0. You can see from the diagram. Here it is flat, the tangents are flat at the minimum and maximum point. So at the stationary point f dash x is 0. Suppose this x naught is the stationary point where x naught is the stationary point. It simply means that we are considering a point either this one or this one. यहाँ हमने बीच का कोई पॉइंट नहीं लिया है. अगर हमने स्टेशनरी कह दिया इसको, तो या तो हम इस पॉइंट की बात करें या फिर हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, यानी कि पीक पॉइंट्स जो हैं ये लोअर पीक और अपर पीक स्टेशनरी पॉइंट. So one implies
f of x naught plus epsilon f of x naught प्लस ये तो 0 हो जाएगा, f x naught plus epsilon minus f of x naught is equal to of order epsilon square. I write this expression as delta f of x naught is order of epsilon square, and we are considering that epsilon is very small, it is very close to x naught. So this will be equivalent to 0. So this is showing that the change, delta is representing the change in the function for x naught, yani when x naught is slightly changed, then change in the function is 0. This shows that f is stationary. I mean to say that for this stationary point, if I write f dash of x is equal to 0, derivative of f is 0, this is also represented by this delta variation. The delta of that function at that point will also be 0, right? Now we come to another concept, which is the concept of functional. What is functional? Suppose I take one example. I define a distance function, and that distance function is denoted by d. Like in this diagram, suppose I want to find what is the distance between the 2 points, endpoints of this curve. I want to find what is the distance between the endpoints of this curve. What is the distance between the endpoints of this curve? So there may exist so many curves between the 2 points, and we are interested in the distance between the 2 points of such type of curves or such type of paths. Then you see your distance function is defined on a curve, on these curves. And what are these curves? These curves are again represented by functions, because what we write? We write for this red line, for this red curve I am writing y is equal to yx. So it is itself a function. Y is depending upon x. It is itself a function. So this is represented by a function. This green curve is represented by a function. This is represented by a function, and you are defining a function on a function. Yani D is defined on a function. So when you define a function on functions, then it is called functional. So functional is a function defined on a domain of, on a set of functions. तो वो उसका डोमेन हो जाएगा on a set of functions. ठीक है, is called functional. Like distance function. D. Now what is the domain? Because there may exist infinitely many curves between A and B, between these 2 points. Suppose this is A and this is B. So there exist infinitely many curves between A and B. The domain of distance function is of infinite dimension, right? Secondly, if I want to write what is the difference between traditional calculus and calculus of variation.
in traditional calculus, हम इसे ऐसे लिख लेते हैं, ये ट्रेडिशनल कैलकुलस और ये वेरिएशनल कैलकुलस। देखिए क्या बेसिक डिफरेंस हुआ। ट्रेडिशनल कैलकुलस में r इज मैप्ड ऑन टू r अंडर अ फंक्शन f, while in variational calculus you have a set of functions. This is a set of functions, this is a set of functions which is mapped onto r with the help of some another function. So this is the difference. And the second difference is that in traditional calculus, the stationary point is found or calculated for maxima, minima or point of inflection. It simply means that wherever your function is stationary you get a point. तो यहाँ पर point मिलता है। और वेरिएशनल कैलकुलस में क्या होता है, वेरिएशनल कैलकुलस में आपको पॉइंट नहीं मिलता है, यू गेट अ कर्व corresponding to the stationary value. So corresponding to, or you can say stationary nature provides a curve. तो ये डिफरेंस है, इट इज प्रोवाइडिंग अ कर्व मीन्स इट इज प्रोवाइडिंग अ फंक्शन, कर्व मीन्स इट इज प्रोवाइडिंग अ फंक्शन। तो यहाँ पर तो मिलता है पॉइंट, आप सिंपल कैलकुलस में करते हो ना, डी वाई डी एक्स, वाई एक फंक्शन है एक्स का, आप फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो रखते हो और यू गेट सम वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू मिलती है उसको रखते हो, वाई की वैल्यू मिलती है और आप कहते हो कि इस पॉइंट पर फंक्शन या तो मैक्सिमम है या मिनिमम है या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, तो यू गेट अ पॉइंट by putting first derivative to be 0. But in variation of calculus, in variational calculus you get a curve corresponding to the stationary nature, right? Now uh, if I take an example of distance function, consider a distance function defined on f, then how will you define it? Suppose you are taking 2 points A and B. ये लाइन थोड़ी ठीक नहीं बनी है, इसको स्ट्रेट बनना चाहिए था, या कर्व हम ले लें ऐसे करके और इनके बीच में ये डिस्टेंस फंक्शन, देन डिस्टेंस फंक्शन ऑफ f is defined as x1, suppose this is x1 and this is x2, from x1 to x2 ds, this is the distance between the 2 points A and B. What will be this distance? If you consider a small portion of it and write it as ds, then it will be defined as dx square plus dy square, or 1 plus dy dx square dx, and I can write it as 1 plus f dash square dx. What is this f dash? F dash is dy dx, because हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं fx is equal to yx. Now if I want to find the curve between A and B,
such that its distance is shortest. So I am talking about shortest. I may talk about maximum also, largest distance. तो शॉर्टेस्ट हो, स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट हो, इस सबको जज करने के लिए यहाँ पर हमें ये जो इंटीग्रल है डिस्टेंस फंक्शन df से जो हमने ये इंटीग्रल डिफाइन किया है, इसकी हमें लानी पड़ेगी स्टेशनरी वैल्यू। और इसकी जब हम स्टेशनरी वैल्यू लाएंगे तो स्टेशनरी वैल्यू वैल्यू क्या होगी, वो एक्चुअल में वो एक करेक्ट पाथ होगा, वो पाथ होगा ए और बी के बीच में, जिसको यदि हम मेजर करें तो उसकी डिस्टेंस शॉर्टेस्ट हो, जो ऐसे केसेस में नेचुरल है, ऑब्जर्व भी कर सकते हो आप, एक स्ट्रेट लाइन होती है। तो कैलकुलस ऑफ वेरिएशन हमें एक टेक्निक प्रोवाइड करती है कि हम कैसे करके इसका स्टेशनरी वैल्यू लाएं, उसको करने की टेक्निक बताती है। ठीक है, तो हमने एक चीज़ ये समझ ली कि जब हम एक ट्रेडिशनल कैलकुलस करते हैं, वहाँ ट्रेडिशनल कैलकुलस में हम ये पता लगाते हैं कि कोई फंक्शन कहाँ पर स्टेशनरी है, यानी कि कौन सा बिंदु है वो। और जब हम वेरिएशनल कैलकुलस करते हैं तो हम ये पता लगाते हैं कि कोई भी इंटीग्रल जो किसी कर्व पर डिफाइंड है, वो इंटीग्रल किस पाथ के लिए, किस कर्व के लिए स्टेशनरी वैल्यू दे रहा है। वो स्टेशनरी आगे ये नहीं बताता, वो अभी जितना हम कैलकुलस वेरिएशन पढ़ेंगे कि वो मिनिमम है कि मैक्सिमम है, लेकिन जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है उसी तरह का पाथ वो हमें प्रोवाइड करता है। ठीक, तो अब हमारे पास कैलकुलस ऑफ वेरिएशन जब हमें लगाना है, वेरिएशनल कैलकुलस लगाना है, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन टेक्निक लगाना है, तो हम इसमें कैसे प्रोसेस करते हैं, ये देखिए कि हम उन पाथ को कैसे दिखाते हैं। यहाँ पर आप देखिए इस वाली शीट में ये हमने कर्व बनाया है, ये 3 कर्व बनाए हुए हैं। ठीक है, सपोज मैं ये जो कर्व है, ये माना मेरा करेक्ट पाथ है जो मैं निकालना चाहती हूँ। मैंने इसको मान लिया कि सपोज दिस द करेक्ट पाथ, या वो पाथ विच इज फुलफिलिंग माई रिक्वायरमेंट। तो ये भी एक पाथ है, ये वाला, ये जैसे एरोज से बताएं, ये 2 पाथ है। ये 2 कैसे हैं, दीज आर द नेबरिंग पाथ। और ऐसे इनफाइनाइट पाथ्स एग्जिस्ट कर सकते हैं बिटवीन ए एंड बी। दिस इज ए एंड दिस इज बी, दिस पॉइंट इज x1 एंड दिस पॉइंट इज x2। इसके बीच में इस तरीके के इनफाइनाइट पाथ हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर 1 हम एक फंक्शनल कंसीडर करेंगे। कंसीडर अ फंक्शनल, मैंने अभी बताया था आपको फंक्शनल क्या होता है। क्यों हम फंक्शनल डिफाइन कर रहे हैं, क्योंकि हमें एक फंक्शन डिफाइन करना है ऑन दीज कर्व्स। ये 3 कर्व बने हुए हैं, इसी तरह और जो इनफाइनाइट कर्व बने हुए हैं उनके ऊपर एक फंक्शन डिफाइन करना है, यानी उन पर डिपेंडेंट एक फंक्शन डिफाइन करना है मुझे। तो वो नेचुरली फंक्शनल हो गया, क्योंकि फंक्शन डिफाइंड ऑन अ फंक्शन इज कॉल्ड अ फंक्शनल। तो हमने एक फंक्शनल कंसीडर कर लिया। अब इस फंक्शनल में मुझे क्या देखना है कि दिस फंक्शनल इज स्टेशनरी। कब है ये स्टेशनरी, तो नेचुरली अगर मुझे स्टेशनरी देखना है तो मुझे इसमें चेंज देखना पड़ेगा कि इसका क्या चेंज, इसमें क्या चेंज हुआ। तो अब मैं इसमें चेंज कैसे कंसीडर करूंगी, चेंज इन द फंक्शनल इज ऑब्जर्व्ड। कैसे ऑब्जर्व करेंगे इसको हम, विद द हेल्प ऑफ जो जिसके ऊपर ये डिफाइन हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ नेबरिंग वाई एक्स। ये हमने वाई एक्स से डिफाइन किया है ना, तो इस वाई एक्स के जो नेबर में, वाई एक्स के नेबर में जो कर्व बने हुए हैं, ये जो वाई एक्स है, ये वाई एक्स है, इसके जो नेबरिंग कर्व है हम उन पर शिफ्ट करेंगे, यानी कि उस पर वैल्यू और फिर इस पर वैल्यू। इन्हीं का तो चेंज हम देखना चाहते हैं कि, तो हम ये जो ऑब्जर्व करेंगे कि इस फंक्शनल में जो चेंज हुआ, यानी स्टेशनरी वैल्यू के लिए चेंज चाहिए, चेंज देखना है हमें, उस चेंज को हम 0 के बराबर रखेंगे। तो फंक्शनल में चेंज कैसे ऑब्जर्व होगा, विद द हेल्प ऑफ दिस नेबरिंग
पाथ। और इस नेबरिंग पाथ को अब हम कैसे डिफाइन करते हैं? नेबरिंग पाथ को डिफाइन करने के लिए हम नेबरिंग पाथ डेजिग्नेट कैसे करते हैं? नेबरिंग पाथ ऑफ yx is defined with the help of a parameter say अल्फा। अल्फा मैंने एक पैरामीटर ले लिया, उस अल्फा को जब मैं वैल्यूज दूंगी तो मुझे y, ये तो yx है ही, इट इज, और या हम इसे कह सकते हैं दिस इज y इज इक्वल टू एफ एक्स। इसका यदि मुझे नेबरिंग पाथ बताना है तो मैं अल्फा की हेल्प से कैसे डिफाइन करूंगी? अल्फा डिफाइन अ फंक्शन eta depending on x such that eta at x1 and x2, eta at x1 is 0 and eta at x2 is 0। ये मैंने क्या कहा है? देखिए, डिफाइन अ फंक्शन ईटा एक्स, ये तो मैंने इसकी वैल्यू दी सच दैट डेल्टा ऑफ वाई एक्स इज ईटा एक्स। डेल्टा क्या दे रहा है? चेंज। वाई एक्स का जो चेंज है वो किससे रिप्रेजेंट हुआ? ईटा एक्स से। और जब हम इस पूरे की इक्वेशन लिखेंगे, इन कर्व्स की इक्वेशन लिखेंगे, तो वहां पर हमें कोई पैरामीटर देना पड़ेगा। अल्फा हमने एक पैरामीटर माना है, ईटा x1 को मैंने 0 कहा, ईटा x2 को 0 कहा। इसका क्या मतलब है? ये x1 पॉइंट है और ये x2 पॉइंट है। आप देख रहे हो यहाँ पर एंड पॉइंट सबके सेम है, तो यहाँ तो कोई चेंज नहीं हो रहा ना। ये जो चेंज है, ये जो डेल्टा वाई एक्स है जिसको मैंने ईटा एक्स कहा, ये मैंने एक कन्वीनियंस के लिए लिखा है इसको ईटा एक्स। तो यदि मैंने इसको ईटा एक्स कहा है तो ईटा की वैल्यू x1 पर और x2 पर कैसी है? 0 है, क्योंकि एंड पॉइंट पर ये जितने भी कर्व हैं वो सेम है, मिल रहे हैं, एक ही पॉइंट पर मिल रहे हैं। तो उनकी जो वैल्यू है, यानी कि जो चेंज है वहां पर कोई चेंज नहीं है, एंड पॉइंट पर कोई चेंज नहीं है, इसलिए 0 के बराबर है। अब मैं कैसे डिफाइन करूंगी? डिफाइन y x अल्फा इज yx0 प्लस अल्फा ईटा x। ये देखिए, ये मैंने क्या डिफाइन किया? ये मैंने एक फैमिली ऑफ कर्व्स डिफाइन किया है, जिस फैमिली ऑफ कर्व में अल्फा आपका एक पैरामीटर है, तो ये अल्फा पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व्स हुआ। और ये अल्फा की वजह से, अल्फा को जब हम वैल्यूज देंगे तो हमें एक कर्व, दूसरा कर्व और भी जितने पॉसिबल कर्व्स हैं वो सारे मिलेंगे। तो ये वे है डिफाइन करने का नेबरिंग पाथ्स को, करेक्ट पाथ को। करेक्ट पाथ कैसे आएगा? मैं माना अल्फा को 0 रख दूं, सपोज इसमें, सपोज मैंने अल्फा को 0 रख दिया, तो अल्फा को 0 रखने से क्या होगा? यहाँ बनेगा y x0 इज yx0 प्लस 0। तो आप करेक्ट पाथ पर आ गए। ये जो पाथ है ना, करेक्ट पाथ, ये पाथ है yx0। यहाँ पर अल्फा पैरामीटर की वैल्यू 0 है। तो ये वे होता है डिफाइन करने का सारे पॉसिबल पाथ्स को, जिसमें हमने एक पैरामीटर लिया अल्फा, ईटा एक्स जो लिया दैट इज चेंज इन डेल्टा। ये ध्यान रखिएगा आप, ये डेल्टा, चेंज इन डेल्टा इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस ईटा। और क्योंकि एंड पॉइंट्स पर कोई चेंज नहीं है, इसलिए ईटा एक्स की वैल्यू एट एंड पॉइंट्स 0 हो जाएगी, विच इज द करेक्ट पाथ। ठीक है। अब ये जो हमारा ईटा हमने डिफाइन किया है, दिस इज एन ऑक्सिलरी फंक्शन। ऑक्सिलरी फंक्शन नेबरिंग हो गई, यहाँ हमने डिफाइन कर दिया ऑक्सिलरी फंक्शन eta x and yx आर स्मूथ फंक्शंस। ये इनकी कंडीशन है कि ये स्मूथ फंक्शन होने चाहिए। क्या मतलब हुआ कि ये स्मूथ फंक्शन है? इसको आप बल्कि वेल बिहेव्ड लिखो पहले। दीज आर वेल बिहेव्ड, वेल बिहेव्ड functions
that is these are continuous and, और दूसरी कंडीशन क्या होती है वेल बिहेव्ड की, दीज आर continuous and नॉन सिंगुलर and there exists continuous first and second derivatives in the domain of x. तो ये कुछ कंडीशंस हैं कि जो ईटा होगा वो वेल बिहेव्ड फंक्शन होना चाहिए। इसके बाद हम एक फंक्शनल डिफाइन कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रल। दूसरा ये कि अगर मैं एक फंक्शन डिफाइन करूं, चलिए हम फंक्शन से ही डिफाइन करते हैं। हम एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। नाउ डिफाइन a functional, j is a functional, so naturally j will be defined on y x। पहले मैं y x पे इसको लिख के दिखाती हूँ आपको। इट इज, कोई इसके लिमिट्स होंगे x के, सपोज x1 to x2, देन फंक्शन ऑफ yx y डैश x और डॉट x, कुछ भी लिख सकते हो, एंड x dx। ये हमने एक फंक्शनल डिफाइन किया। j फंक्शनल है, so j is a function defined on a function yx and it is represented in terms of an integral, क्योंकि हमें इंटीग्रल के लिए ही दिखाना है कि हम स्टेशनरी के लिए, स्टेशनरी कैरेक्टरिस्टिक या स्टेशनरी फंक्शनल की स्टेशनरी वैल्यू के लिए पाथ कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इसी के बेसिस पर मैं डिफाइन करूं, अगर हमने जो पैरामीट्रिक फैमिली ली है j ऑफ y x अल्फा, देन इट विल बी x1 से x2 के बीच में हम ले रहे हैं फंक्शन ऑफ y x अल्फा y डॉट x अल्फा, इसको डॉट और डैश दोनों ले सकते हो, और x dx। ये है थर्ड। ठीक है, जिसमें हमने क्या डिफाइन किया है, फैमिली y ऑफ x अल्फा को हमने कैसे डिफाइन किया है, पैरामीटर्स, पैरामीट्रिक फैमिली ऑफ कर्व्स को, यानी जो डोमेन है उसमें, उस पे y x अल्फा को कैसे डिफाइन, ये डोमेन है ना, इसका डोमेन है j का, इसको कैसे डिफाइन किया है, दिस इज y x 0 प्लस अल्फा ईटा x, ऐसे हमने इसको डिफाइन किया है, वेयर ईटा x इज 0 एट x is equal to x1 and x2। दूसरी चीज, what is variation in yx alpha, this variation is given by alpha eta x, this is the variation। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं y डॉट x alpha, so it will be y dot x 0 plus alpha eta dot x। So what is variation in y dot x alpha? It is alpha eta dot x। ठीक, इसको करने के कई तरीके हो सकते हैं, आपको बुक्स पे कुछ और तरीके से भी मिल सकता है और आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब हम अगर वेरिएशन की बात करें, क्योंकि मुझे इसमें वेरिएशन लेना है, तो मैं डेल्टा एफ देखूं तो क्या होगा, दिस विल बी डेल्टा एफ, एफ को आप पहले किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, y के, देन डेल्टा y, डेल्टा एफ डेल्टा y डॉट डेल्टा y डॉट। ठीक है, यहाँ वैल्यू रख दें हम, डेल्टा एफ डेल्टा y, व्हाट इज डेल्टा y, डेल्टा y ये निकाला हमने, अल्फा ईटा x
delta f delta y dot. What is delta y dot? Is alpha eta dot x. यहाँ eta dot से क्या मतलब है? Eta dot is d eta dx. तो ये दो वैल्यूज हमारे पास आ गई. ये वैल्यू हमारे पास आ गई डेल्टा एफ की. नाउ फॉर स्टेशनरी वैल्यू ऑफ 3 की स्टेशनरी वैल्यू के लिए आप क्या निकालेंगे? डेल्टा जे इज इक्वल टू 0. अभी हमने शुरू में देखा था कि स्टेशनरी का मतलब दिस डेल्टा वेरिएशन शुड बी 0. सो व्हाट इज दिस डेल्टा जे? दिस डेल्टा जे इज डेल्टा ऑफ x1 x2 function of yx alpha y dot x alpha and x dx, right? This delta variation has no concern with x, so you can enter it inside the integral x1 to x2. This will become delta f dx. मैं इसे पूरा नहीं लिख रही हूँ दोबारा, understood है. Now what is this delta f? Use 6. Using 6, this becomes x1 x2 delta f delta y alpha eta x plus delta f delta y dot alpha. ये जो eta dot है इसको मैं लिख रही हूँ d eta dx. ठीक है, तो ये दो पार्ट हो गए आपके पास, एक ये और एक ये पार्ट. तो आगे सॉल्व करते हैं इसको. डेल्टा जे इज x1 to x2 डेल्टा f डेल्टा y अल्फा ईटा x प्लस डेल्टा f डेल्टा y डॉट अल्फा ईटा डॉट, जिसको मैंने लिखा है d ईटा dx. Again solve it. Delta f delta y alpha eta x dx. In this second integral, integrated as a product of two functions. डेल्टा f डेल्टा y डॉट हमने ऐसे ही रखा, इसको फर्स्ट मान लो और इसको सेकेंड. अल्फा भी ऐसे ही रखिए. इसका इंटीग्रेशन आ गया ईटा. इट इज ईटा x for the limits x1 to x2. फिर माइनस डेरिवेटिव ऑफ डेल्टा f डेल्टा y डॉट अल्फा ऐसे ही रहेगा और इसका इंटीग्रल विच इज ईटा x dx. ठीक. now what is its value? eta x is 0 at x1 and x2. again combine the two. कंबाइन कर दीजिए इन दोनों को. अल्फा डेल्टा f डेल्टा y माइनस डी डी एक्स ऑफ डेल्टा f डेल्टा y डॉट ईटा dx. अब इस स्टेज पर एक रियल एनालिसिस की प्रॉपर्टी, बिकॉज ईटा इज ईटा को हमने शुरू में माना था कि ईटा इज अ वेल बिहेव्ड फंक्शन. सो देयर इज अ कंडीशन दैट इफ यहाँ पर आप कोई लिमिट्स इसकी ले सकते हो. सपोज I say a to b fx gx is fx gx is 0 and gx is well behaved, then this implies fx is 0 for all x belonging to a. तो यहाँ पर भी eta is well behaved. This implies delta f
अल्फा तो पैरामीटर है जो फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अल्फा तो ज़ीरो नहीं होगा। डी डी एक्स डेल्टा एफ डेल्टा वाई डॉट इज इक्वल टू ज़ीरो फॉर ऑल एफ belonging to the domains of J। कब होगा, लेकिन हाँ इससे पहले हमें लिखना चाहिए था फॉर स्टेशनरी, मैंने अप्लाई कर दिया उसको, फॉर स्टेशनरी वैल्यू डेल्टा J शुड बी ज़ीरो, so this implies 9 is 0, तो इंटीग्रैंड को 0 होना पड़ेगा और ये इंटीग्रैंड हो गया 0। अब आप देखिए इसे ध्यान से, अगर मैं f को L लिख दूं तो ये क्या बन रहा है, ये पूरा लैग्रांजेस इक्वेशंस ऑफ मोशन बन रहा है। ये जो इसका मतलब ये हो गया कि हम मैकेनिकल सिस्टम को यूज करने के लिए यदि हमारा एक्शन इंटीग्रल है, अगर एक्शन इंटीग्रल है तो जो हमारा इंटीग्रैंड होगा उसमें f की जगह l होगा, और जैसे ही इस f की जगह l होगा यहाँ पर l आ जाएगा सॉल्व करते करते, जो कि आ जाएगी लैग्रांजेस इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगी। तो एक्शन इंटीग्रल्स जो होते हैं उन पर हम कैलकुलस ऑफ वेरिएशन टेक्निक लगाते हैं, तो हमारे पास मैकेनिकल सिस्टम को सॉल्व करने के लिए लैग्रांजेस इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाती है। ठीक है, ये जो 10 है, 10 आर सेकेंड ऑर्डर इक्वेशंस। अब आपने एक चीज देखी, जब हम ऑर्डिनरी कैलकुलस कर रहे थे, जो हमारी स्टैंडर्ड कैलकुलस है, तब तो हमारे पास स्टेशनरी वैल्यू हम निकालते हैं, फॉर स्टेशनरी वैल्यू हम क्या लिखते हैं, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन टू बी जीरो, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज जीरो, हम लिखते हैं ना एफ डैश एक्स नॉट इज जीरो या डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड वी फाइंड द पॉइंट। और जब हम वेरिएशनल कैलकुलस करते हैं, वेरिएशनल कैलकुलस में हम स्टेशनरी पॉइंट के लिए क्या लिखते हैं, फॉर स्टेशनरी और द करेक्ट पाथ, फॉर स्टेशनरी पाथ second order equation, we get second order equation, differential equation, second order differential equation। तो ये एक डिफरेंस आया दोनों में, राइट। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा इस इक्वेशन में कुछ केसेस लगा के इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं फॉर पर्टिकुलर केसेस। हम एक इसका केस कंसीडर करते हैं, हमारे पास इक्वेशन है डेल्टा एफ डेल्टा वाई डेरिवेटिव ऑफ डेल्टा एफ डेल्टा वाई डॉट, ये आ रही, ये इक्वेशन मिली थी। तो हम केस 1 लेते हैं, इफ योर फंक्शन इज, ऐसे लिखो, इफ f is independent of y, ठीक है, तो क्या होगा, दिस इंप्लाइज डेल्टा एफ डेल्टा वाई विल बी जीरो, यहाँ रख दीजिए, 12 implies डी डी एक्स ऑफ डेल्टा एफ डेल्टा वाई डॉट इज जीरो, और इंटीग्रेटेड, दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट इंटीग्रल, y डॉट इज कांस्टेंट। तो बहुत आसान हो जाता है, जब आप एप्लीकेशंस देखेंगे तो आप देखेंगे कि यदि आपका f y पर डिपेंड नहीं कर रहा तो हमें पूरी इस इक्वेशन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम सीधा पार्शियल डेरिवेटिव निकालें f का y डॉट के रिस्पेक्ट में, उसको कांस्टेंट रख दें एंड देन सॉल्व इट टू फाइंड द पाथ। इसी तरह से एक और केस बन सकता है इसका, केस 2, इफ f इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, हमने एक वैल्यू निकाली डेल्टा एफ डेल्टा वाई डी वाई डी एक्स प्लस, क्योंकि ये टोटल डेरिवेटिव है और f किस किस का फंक्शन रह गया, y का और y डॉट का,
डी वाई डॉट डी एक्स। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व कर लें। और ये जो है आपकी इक्वेशन, यूज़ करो 12 को, यूज़ 12। 12 में डेल्टा एफ डेल्टा वाई कितना आ रहा है यहाँ पे, दिस इज डी डी एक्स ऑफ डेल्टा एफ डेल्टा वाई डॉट, ये आ रहा है। तो ये हमने रख दिया है यहाँ पर, डेल्टा एफ डेल्टा वाई डॉट डी वाई डी एक्स डेल्टा एफ डेल्टा वाई डॉट, और इसे मैं लिख सकती हूँ एस डी वाई डॉट डी एक्स को। अब इन्हें कंबाइन करिए, कंबाइन करके क्या आया, डेरिवेटिव ऑफ डेल्टा एफ डेल्टा वाई डॉट डी वाई डी एक्स, ये आ गया। ठीक है, एफ को आप कह रहे हो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, तो डी एफ, अच्छा अभी इसको थोड़ा सा और लिखते हैं ठीक करके, हाँ ऐसे लिख लो, डी डी एक्स ऑफ एफ माइनस डेल्टा एफ डेल्टा वाई डॉट डी वाई डी एक्स इज जीरो। हाँ इसको इधर ले आइए लेफ्ट साइड में, एंड देन अगेन इंटीग्रेट एफ माइनस डेल्टा एफ डेल्टा वाई डॉट डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, दिस इज अगेन कॉल्ड फर्स्ट इंटीग्रल। तो ये जो आई है हमारे पास, ये कहलाती है, दिस इज कॉल्ड बाल्ट्रामी आइडेंटिटी। ये जो फॉर्म्स हैं, ये जो हमारी 13 आई है, ये जो 14 आई है, ये आप जब मैकेनिकल प्रॉब्लम्स करेंगे सॉल्व बाय कैलकुलस ऑफ वेरिएशन टेक्निक, वहाँ पर ये इक्वेशंस बहुत काम आती हैं। ठीक, तो इस तरीके से हम एक डिफरेंट तरीके की कैलकुलस हमने देखी, विच इज़ कॉल्ड द कैलकुलस ऑफ वेरिएशन और वेरिएशनल कैलकुलस, जो हमारी ट्रेडिशनल कैलकुलस है उससे इस मायने में भिन्न है या यूज़ होती है जब हमें स्टेशनरी वैल्यू निकालनी होती है। जब हमें स्टेशनरी वैल्यू ऑफ ए फंक्शन निकालनी होती है तब हम यूज़ करते हैं अपनी ऑर्डिनरी कैलकुलस, और वहाँ पर हमें स्टेशनरी वैल्यू के लिए स्टेशनरी पॉइंट मिलता है, उस पॉइंट पर हम स्टेशनरी वैल्यू निकालते हैं। लेकिन जब हम एक वेरिएशनल कैलकुलस करते हैं तो वेरिएशनल कैलकुलस में स्टेशनरी वैल्यू ऑफ फंक्शनल निकाली जाती है, स्टेशनरी वैल्यू ऑफ फंक्शन नहीं निकाली जाती। फंक्शन तो है वो, लेकिन वो फंक्शन फंक्शन पर ही डिफाइंड है, तो वहाँ हम स्टेशनरी वैल्यू ऑफ फंक्शनल के लिए जो कुछ भी करते हैं उसके बाद हमें कर्व मिलता है, हमें एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन मिलती है, जिसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें एक पाथ मिलता है which is called the correct path. So this is all about this concept, and now in next lecture we will use this technique to solve some mechanical problems. Okay, thank you.